اپنے حق کے لیے لڑے اور آواز اٹھائے۔ Trust is a good thing, but a blind trust is the worst. جی میرا نام جبران حیدر ہے اور میں سینئر وائس چیئرمین۔ میرا نام سیدہ طاہرہ کاظمی ہے اور میں کیبنٹ کی کوآرڈینیٹر ہوں۔ میرا نام تنویر امان ہے اور میں کونسل میں ایز اے ایجوکیشن سیکرٹری کام کرتا ہوں۔ میرا نام شامیر ہے اور میں انفارمیشن سیکرٹری۔ میرا نام رضی الحسن ہے اور میں اس کیبنٹ میں جنرل سیکرٹری۔ کونسل کا ایز اے وائس چیئرمین جو ہمارا مین رول ہوتا ہے وہ ہاسٹلس میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت چترال میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کا میزبان یزدان طلق۔ آج ہی ناظرین ہم اس وقت موجود ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ آج ہماری ملاقات جی بی کونسل کے چیئرمین تنویر بلاور بھائی کے ساتھ ہے۔ آج ان سے ہم جی بی کونسل کے بارے میں گفتگو کر لیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بڑا اچھا لگا کہ آپ ایک اچھا سا کونسل چلا رہے قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر۔ اس بارے میں ہم آپ سے آج تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ سر جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کونسل کب سٹارٹ کیا، اس کو بنانے کا مین مقصد کیا تھا؟ یزدان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ بیسکلی جو گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں، یہ 2008 سے پراپرلی فنکشن کر رہی ہے ٹل ناؤ۔ تو یہاں جو اس کا بیسکلی جو مین ایم تھا کونسل بنانے کا، یہاں پہ پہلے سے بھی ہمارے کونسل بننے سے پہلے بھی یہاں پہ کونسلس موجود تھی۔ تو اسی بیس سے اپنے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے جو اس دور کے ہمارے سینئرس تھے، انہوں نے یہ کمی محسوس کی کہ ہماری بھی کونسل ہونی چاہیے ٹو فیسیلیٹیٹ اسٹوڈنٹس۔ تو اسی بیس پہ ہمارے یہاں کونسل بنی گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل، جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے کونسل کے اسٹرکچر کے بارے میں ہمیں ذرا آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ باڈی اسٹرکچر کیسے بنایا ہے؟ بیسکلی یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں، یہاں پہ 6 اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں اور یہ ریجن وائز ہیں یہ باڈیز۔ تو یہاں پہ پنجاب اسٹوڈنٹ کونسل ہے، یہاں پہ پختون اسٹوڈنٹ کونسل ہے، یہاں پہ سندھ اسٹوڈنٹ کونسل ہے، یہاں پہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل ہے، سرائکی اسٹوڈنٹ کونسل ہے اور گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل۔ تو اسی طرح یہ 6 باڈیز ہیں جو یہاں پہ فنکشن کرتی ہیں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے لیے۔ آپ ہمیں یہ بھی بتاتے چلے کہ یونیورسٹیز کے اندر، مختلف یونیورسٹیز کے اندر کونسلس بنائے جاتے ہیں جن پہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس طرح کے کونسلس نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے کونسل سے اسٹوڈنٹ پہ نیگیٹو امپیکٹس پڑ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بیسکلی تنقید، جہاں تنقید نہ ہو وہاں پازیٹیوٹی کا کیسے پتہ چلے گا یا ہماری اصلاح کیسے ہو؟ بالکل۔ لیکن جو تنقید کرتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں ان کی وہ تنقید بھی اس طرز کی کرتے ہیں کہ لسانی کونسلس۔ بالکل۔ تو ہم بیسکلی اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، سب ویل اویئر ہیں پاکستان کے ڈائنامکس سے۔ اگر ہم باہر کی طرف بھی دیکھیں پاکستان کے ہی علاقوں کی، تو جو صوبے بنے ہیں وہ بھی تو لسانی بنیاد پہ ہی بنے ہیں۔ اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ لسانی کونسل بنے، اپنی قوم کو ریپرزینٹ کرنا۔ اور یہاں پہ گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل باقی جو تعداد میں جتنی بڑی قومیں ہیں ان کی برابری میں اپنا یہاں پہ رول ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ریپرزنٹیشن ہے گلگت بلتستان کی۔ تو یہ کہنا کہ نگیٹیوٹی، دیکھیں نگیٹیوٹی ہر چیز میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہاں جہاں پہ پازیٹیوٹی ہوگی وہاں پہ آپ کو ضرور نگیٹیوٹی بھی ملے گی، لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نگیٹیوٹی کتنی اور پازیٹیوٹی کتنی۔ الحمدللہ گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ کونسل بہت سی ایسی اچھی چیزیں ہیں جس کے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا بھائی، آپ ہمیں یہ بھی بتائیں، آپ کو پتہ ہے مختلف یونیورسٹیز میں کوٹا رکھا جاتا ہے ایڈمیشنز کے لیے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ قائد اعظم یونیورسٹی کیا رول پلے کرتا ہے کہ کوٹوں کے بارے کس بیس پہ کوٹے دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں اب یہاں پہ جو گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیسکلی ہم فاٹا کے ساتھ مرج کوٹا سسٹم میں، اور جو کوٹا ہمیں ملتا ہے ہم اکثر ڈیمانڈ بھی جتنے بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں ان سے ملتی ہیں، تو ہم یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم جو ہے گلگت بلتستان کے لیے وہ کم ہے۔ جس قدر ہمارے وہاں لٹریسی ریٹ ہے اس لحاظ سے ہمارا کوٹا سسٹم جو ہمیں کوٹا ملتا ہے یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں یا مختلف یونیورسٹیز میں بھی، تو یہ بہت کم ملتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو کوٹا سسٹم ہے کم سے کم 3 سے 4% ہونا چاہیے۔ بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سال 2023-24 میں کس طرح کی سہولیات آپ نے پرووائڈ کی؟ جو کونسل کا بیسکلی ٹینیور ہوتا ہے ایک کیبنٹ کا، وہ 1 سال کا ہوتا ہے یا 1 سال 2 مہینے 3 مہینے اتنے راؤنڈ اباؤٹ
1 साल का होता है जेनरल। तो हमने जो लास्ट ईयर हमें जब काउंसिल मिली थी तो जो स्टूडेंट जो फंक्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे, कुछ कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, कुछ एकेडमिक होती है, हमारी स्टडी सर्कल्स होते हैं हमारे हर हफ्ते 2 हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं हमारे महीने में 1-2। तो इसी तरह हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। देखें बड़ा हेक्टिक सा यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है स्टडीज़ का, तो इसी के थ्रू जब स्टूडेंट ज़्यादा एक सिनेरियो बनता है ऐसा, तो हम कोई प्रोग्राम रख लेते हैं। अच्छा भाई, प्रोग्राम के नाम से मुझे याद आया कि जैसा कि आप लोग हर साल 1 नवंबर को आप गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी को आप सेलिब्रेट करते हैं, इसमें आपका ताउन यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी वालों का ताउन आपके साथ, और आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है इस तरह के इवेंट्स कंडक्ट कराने में? देखिए जो हमारे ही टेनोर में जो लास्ट ईयर 1 नवंबर हुआ था, 1 नवंबर बेसिकली शुरू से ही हमारे यहाँ होता हुआ आ रहा है। 1 नवंबर एक मेन हमारा इवेंट है, तो बयात भी होता था लास्ट टाइम्स में, तो हमने बयात को छोड़ के हमने 1 नवंबर को अपना मेन, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकली जो कॉन्टेक्स्ट में हमारा आता है वो 1 नवंबर आता है, बिल्कुल। तो हमने इस साल 1 नवंबर किया था ग्रैंड इवेंट की तरफ। तो हमने देखा बेसिकली ऑल ओवर पाकिस्तान में जो इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी जो 1 नवंबर हुए थे वो भी इस लेवल के नहीं हुए थे जो इस दफ़ा हम कादियागंज यूनिवर्सिटी में जो हमने किया था। और इसमें एक और खूबसूरत बात यह थी कि हमने इस दफ़ा जो 1 नवंबर किया था वो टोटली स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कादियागंज यूनिवर्सिटी में, सब ने मिल के हमने टोटली जो एक्सपेंसेस थे हमारे टोटली वो स्टूडेंट ने खुद बेयर किए थे, टोटली हमने खुद ये इवेंट हुआ। अच्छा सर, आपके कौंसिल के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, फीमेल मेल्स, और कैबिनेट में कितने आपके मेंबर्स हैं? आप इसके बारे में भी जरा हमें गाइड कीजिए। और तकरीबन राउंड अबाउट हमारे 300 to 400 स्टूडेंट्स इस वक्त इनरोल हैं कादियागंज यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे कौंसल्स अपने कल्चरल जो इवेंट होते हैं वो यहाँ पे करवाते हैं। आपने अभी तक कितने ऐसे इवेंट्स यहाँ पे सेलिब्रेट करवाए? देखें सबसे पहले तो हमने 1 नवंबर तो हमारा सेलिब्रेट होता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, वो भी हमारा एक कल्चरल इवेंट ही है लेकिन एक हिस्टोरिकल हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो इस साल हमने जश्न महफंग व तलीम हमने सेलिब्रेट किया था, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी, जो गिलगित बल्तिस्तान में तमाम इलाकों में किसी न किसी नाम से किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। तो इस साल हमने जश्न महफंग किया था, वो बहुत बेहतरीन गया हमारा माशाल्लाह से। तो जिसमें हमारी कम्युनिटी, हमारे जो जनरल बॉडी है, सब ने एज ए कैबिनेट या जनरल बॉडी सब ने एक बेहतरीन हमने प्रोग्राम का इनकाद किया। गिलगित के अंदर जो इश्यूज है उनके बारे में अभी तक आपके कौंसिल के क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल अदा है? देखें जो गिलगित बल्तिस्तान में जो भी इशू होता है वो बेशक हम अपने वतन से दूर हैं, लेकिन हमेशा हमारा दिल हमारा दिमाग अपने वतन के साथ, अपने लोगों के साथ होता है, हमने वही जाना है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान में जो भी इशू रेज होता है, हम थ्रू यहाँ पाकिस्तान के हर अक़वाम हर कौम से यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद, तो हम यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करते हैं, स्टडी सर्कल रखते हैं और एक पीस का एक पैगाम देते हैं गिलगित बल्तिस्तान को। जो रिसेंटली भी जो हमारे वहाँ कुछ वाक़यात हुए थे, यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया था यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी के पास। बेसिकली इन प्रोटेस्ट का मकसद ये होता है हमारे वहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी में कि अवेयर करें, बेसिकली अवेयरनेस हो। देखें इंसान को अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ अवेयरनेस होती है, इसी के थ्रू हम एक बेहतरीन माहौल बना सकते हैं। अच्छा सर, एज आप चेयरमैन कौंसिल के, आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही पैगाम दूंगा वालिदैन को जो वहाँ पे बैठ के मेहनत मशक्क़त करके हमें यहाँ भेजा है हमें यहाँ पे। तो ट्रस्ट इज अ गुड थिंग बट अ ब्लाइंड ट्रस्ट इज अ वर्स्ट। तो मुझे यहाँ तक लगता है हमारे पेरेंट्स हम पर कुछ ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट। तो मैं उन वालिदैन को भी यही पैगाम दूंगा, ट्रस्ट करें, बहुत अच्छी बात है, ट्रस्ट करें, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें बच्चों को। तो चेक एंड बैलेंस रखें, बेशक यहाँ भी हों डाउन में हों, आप ज़रूर अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस रखें। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गिलगित कौंसिल के वुमेन प्रेसिडेंट साहिबा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैम? आप ठीक है? मैम आप भी हमें बताइए, जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया कि गर्ल्स को किस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ता है और आप लोग किस तरह हैंडल करते हैं इन इश्यूज को ओवरकम करने की, किस तरह आप अपना इनपुट डालते हैं इस चीज़ में?
जी, सबसे पहले तो हमारे पास मेल कैबिनेट के साथ फीमेल कैबिनेट भी होता है जीबीसी स्टूडेंट्स का। तो फीमेल कैबिनेट का हमारा ग्रुप है और हमारा जो रोल है वो ये है कि हम गिलगित से आने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, सबसे पहले तो हम उनके लिए एक टी पार्टी रखते हैं जहाँ हमारी इंटरेक्शन होती है उनके साथ, जो न्यू कमर्स है। फिर हम उन्हें मतलब हम करियर काउंसलिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी के माहौल के साथ कैसे एडजस्ट होना है, उन्हें हॉस्टल अलॉटमेंट में हेल्प करते हैं। और ज़्यादातर हम कोटा में नहीं आते तो सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्हें फाइनेंशियली भी अगर नीड हो तो हम अपने काउंसिल वालों से डिस्कस करते हैं उनके इश्यूज और वो सॉल्व करते हैं। और हमारा जो फीमेल विंग है, पहले तो हमारा अपना एक कैबिनेट है, उसमें हम इश्यूज को सॉल्व करते हैं। और हमारी जो फीमेल कैबिनेट है वो दूसरे जो काउंसिल है जैसे सिराई की काउंसिल, पंजाब काउंसिल है, उनके साथ भी हमारा ग्रुप है। तो हम उधर भी मतलब जो जर्नल गर्ल्स के लिए, पूरी गर्ल्स के लिए हम काम करते हैं वो उनके साथ मिलकर करते हैं। और अपने फेज पे हम जीबी से जितनी लड़कियां आती है उनकी मतलब उनके लिए एकेडमिकली कोई हेल्प हो या उन्हें कोई इमोशनली सपोर्ट नीड हो, तो ये सारे हम लोग उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। मैम आप हमें ये बताते चले कि आपको पता है कि जब गिलगित से यहाँ पे आ जाती है लड़कियाँ, हमारी बहनें, उनको सबसे बड़ा इशू होता है कि रहने का, मतलब वो कहाँ पे रहे, हॉस्टल्स वगैरह का बड़ा इशू होता है। एक तो यूनिवर्सिटी काफ़ी साइट में है, तो आने जाने भी मसला होता है। हॉस्टलिंग के बारे में आपके कौंसल ने अभी तक क्या काम सर अंजाम दिया? अच्छा, सबसे पहले तो पहले जब मैं आई थी उस टाइम ये होता था कि हम लोग रावलपिंडी में हॉस्टल्स में, प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते थे और यूनिवर्सिटी आते थे। लेकिन जब ये साल आए इस काउंसिल ने मतलब इंटरनल हॉस्टल में मोर देन 40 सीट्स क्या किया है गिलगित की गर्ल्स के लिए, मतलब उनके लिए एलोकेट किया है। मतलब आगे जाके बात की है कि हम दूर से आए हैं और इनके लिए मतलब मसला हो रहा है, तो हमारे इस बार बहुत सारे गर्ल्स इंटरनल हॉस्टल में शिफ्ट हुई है, तो ये मसला भी हल हो रहा है। हमारा जो मेन मकसद होता है गर्ल्स के लिए इंटरनल हॉस्टल, सबसे पहले तो सेफ्टी, वो दूर से मतलब ट्रेवल करना उनके लिए इतना इजी नहीं होता है। दूसरा तो इकोनॉमिकली हमारा बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो प्राइवेट हॉस्टल से आना वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। इंटरनल हॉस्टल का ये है कि वो सस्ता पड़ रहा है और इससे स्टूडेंट्स का टाइम भी बचता है। वो 1-2 घंटा ट्रेवल करती है तो वो अपने स्टडीज़ के लिए वो टाइम निकाल। जी नाजरीन, अब आए हम चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के कैबिनेट के पास। तो कैबिनेट मेंबर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत? भाई आप अपना इंट्रोडक्शन कराए कि आप कौंसल के अंदर आपका क्या रोल है, पोजीशन क्या है आपकी? जी, मेरा नाम जिब्रान हैदर है और मैं सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पे अपने सर्विसेज सरअंजाम दे रहा हूँ कौंसिल में। तो बेसिकली मेरा जो काम है वो चेयरमैन के एब्सेंस में कैबिनेट को देखना होता है कि कैबिनेट के मामला जो होते हैं उनको हैंडल करना होता है। उसके अलावा जैसे चेयरमैन ने पहले बताया, क्यूएसएफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, कायदन स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से। वहाँ पे हर कौंसल अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जो मेन हेड होती है वो वही लीड कर रही होती है क्यूएसएफ। तो उसमें एसवीसी का बीइंग एसवीसी मैं अपनी प्रेजेंस शो करता हूँ कि अपनी गिल बल्तिस्तान स्टूडेंट काउंसिल की। तो ये मेन जो रोल होता है वो होता है मेरा एसवीसी का। नाम रजीउल हसन है और मैं इस कैबिनेट में जनरल सेक्रेटरी का रोल सर अंजाम दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और आपकी टीम को शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमारे टेन्योर में जो जिम्मेदारी हमें दी गई थी, हमारे ऊपर जो सुपुर्द की गई थी, तो सबसे पहले हम आए थे। इसके बाद ये हुआ कि इधर जितने भी हमारे, मैं अपना रोल का बता रहा हूँ कि उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो मेरा ये सिंपल ये होता है कि हमारे इधर जितने भी जनरल बॉडी है, एक्टिव जनरल बॉडी है, उनके साथ उठना बैठना ज़्यादा होता है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी इनरोल स्टूडेंट हैं, उनके मसाइल वो इजीली हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं वो जो इश्यूज़ है वो अपने कैबिनेट के पास लेके जाता हूँ। वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, वो एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज़ हो, वो हम कैबिनेट को बताते हैं। कौंसल का एज ए वाइस चेयरमैन जो हमारा मेन रोल होता है वो हॉस्टल्स में होता है। वहाँ पे कोई पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट कोई इश्यूज आते हैं और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के दीगर जो इश्यूज हैं उन पे क्यूएसएफ की जो मीटिंग्स होती हैं वो हम अटेंड करते हैं। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट काउंसिल का वो हम उनके सामने रखते हैं। मेन जो रोल है वो हमारा क्यूएसएफ और उनकी मीटिंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, मेरा नाम शामिर है और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट काम कर रहा हूँ। मेरा रोल इसमें यह है कि गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट काउंसिल के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, लाइक कि व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स एंड बॉयज़, इसके बाद ट्विटर का जो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके बाद फेसबुक और इंस्टा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में मेरा काम उनको रन करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर अमान है और मैं काउंसिल में एज आ एजुकेशन सेक्रेटरी काम करता हूँ। बेसिकली जो रोल होती है, पहले हम काउंसिल की बात करते हैं। हमारी काउंसिल की जो एग्जिस्टेंस है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, जो बुनियादी जो स्टूडेंट की जो पॉलिटिक्स है वो चलाना, और जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करना। मैं अपनी बात करूँ तो एज एजुकेशन सेक्रेटरी हम ये करते, वीकली हम स्टडी सर्कल रखवाते हैं और हर वीक पे गेस्ट बुलाते हम। रिसेंटली हमने डॉक्टर परवेज़ हुदबोई को बुलाया था, सैयद मुज़म्मिल अली शाह को बुलाया था। देन अवामी एक्शन कमेटी जो पिछले 21-22 दिनों से विंटर में गिलगित में स्ट्राइक कर रही थी, हम उनको इधर बुलाए थे। डॉक्टर परवेज़ हुदबोई साथ भी थे, देन एहसान एडवोकेट थे उनके साथ। फिर जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर है, बाबा जान हो खा, फिर नाजी साहब हो, हम उनको बुलाते हैं ताकि ये चीज़ हो, क्योंकि हम अपने रूट को नहीं खोना चाहते और इस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती यही है। और पिछले महीने हमने फ्रीलांसिंग कोर्स करवाए 1.5 महीने से, और नेक्स्ट 2 महीने में हम फिर करवाने लगे। तो ये रोल्स है हमारे। मेरा नाम सैदा ताहिरा काज़मी है और मैं कैबिनेट की कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम कैबिनेट वाले यहाँ जीबी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इशू ये होता है कि हॉस्टल का, कि उनको बहुत दूर दराज से ट्रैवलिंग करके यहाँ आने के बाद भी वो जो है इंटरनल ना नहीं होते, एक्सटर्नल होते हैं, तो फिर उनके लिए काफ़ी इश्यूज आते हैं। उनके वहाँ से यहाँ ट्रैवलिंग करते हुए टाइम के इश्यूज आता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होती उनकी, और साथ साथ वो बाहर कहीं बैठते हैं तो फिर उनके लिए मेंटली भी वो डिस्टर्ब होते हैं, और साथ साथ में उनके लिए स्टडीज़ के लिए भी टाइम कम मिलता है। तो फिर हमारे जीबी की कैबिनेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि जीबी के स्टूडेंट स्पेशली फीमेल्स के लिए जो वो इंटरनल जो है सीट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करे। इस हवाले से हमने पहले भी काफ़ी कोशिश की है। उसके बाद हमने पहले हमारी 20 से 25 सीट्स जैसा होती थी, अब हमने 40 प्लस में कर दी है। और साथ में हमने यहाँ स्टडी सर्कल वगैरह हम रखते हैं, जिसमें हमारे जो है बहुत ही जाने माने जो है टीचर्स यहाँ पे आके जो है स्टडी सर्कल में बैठते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी आके यहाँ पे बैठते हैं और बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। अच्छा मैम, आखिर में आप पे जो न्यू कमर्स स्टूडेंट होते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए भी यही है कि वो जब यहाँ आते हैं तो फिर वो स्पेशली कैबिनेट से थोड़ा टच रहे, और उनको किसी भी हवाले से, हॉस्टल के हवाले से हो या फीस के हवाले से हो या मेंटली डिस्टर्ब होते, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते और वो जो है दोबारा से यहाँ फीस वगैरह करके वापस चले जाते हैं। रिसेंटली ऐसा 2-3 केसेस आए थे जो हमारे जीबी के थे, तो हमने उनको काफ़ी यहाँ पे एडजस्ट करवा के फिर इनको इंटरनल हॉस्टल में भी हमने रखा है, और इस तरह से हम उनकी जो है काफ़ी हेल्प करते हैं कैबिनेट मेंबर्स। जी मैम, ठीक है आप मैम। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और सब गर्ल्स को इनकरेज करूँगी कि ऐसे कामों में आगे रहे। इससे आप लोगों की लीडरशिप स्किल, डिसीजन मेकिंग पावर इनमें इजाफा होगा, और अपने हक के लिए लड़े और आवाज़ उठाए।